Welcome, Priyanka. It's so nice Thank you. to have you with us and talk about a subject which is very close to you, and I think in current scenario, close to a lot of people. Um, but what just to start, who am I? I'm from Task Tracker team. I'm the CEO of Task Tracker Suite, and what this month, on the month of on 10th of October, we celebrated World Mental Health Day, and it just reminded us to care for our mental well-being in this busy world uh, of technology, innovation, information, and financial gains. And therefore, our well-being being, very important, it has impacted also, and it has to impact further our, the surrounding people, the people who are we in touch with. And the idea of bringing Miss Priyanka on this call was to connect with those people and connect and tell us, small tips, so that everybody can manage stress and improve their mental health. So, and we all know that, stress is a universal challenge, and in today's fast-paced world, and it affects both personally and professionally. And in India, and especially in India, the work timings are way longer. They're not like Ireland, where they're only working for 5 hours a day and enjoying a equal work-life balance. And then the personal life is equally demanding, where the kids needs their attention, the where the parents are staying with you, they need their attention, the wife needs their attention, the husband needs the attention, as a family you need to devote time. And then there are everybody is at a different stage of life, so the stress of different people is very different, which needs to be attending. So, before we dive deeper into the discussion on stress management, let me introduce our today's esteemed guest, Ms. Priyanka, and she's the founder of Core and Pure Essential Oils. And hailing from Bihar, Priyanka discovered her purpose in ancient wisdom, and following a corporate career, she embarked on a remarkable journey founding Core and Pure. So, a sanctuary of 100% natural and potential essential oils, that is what the essence of Core and Pure is. And with a strong foundation in Vedic teachings, Priyanka has evolved into a visionary, an entrepreneur, and a notable figure in associations like Essential Oils Association of India and, of course, BNI. So, Priyanka also specializes in stress management and wellness, and we are privileged to have her here to shed light on this critical topic. And so now, let me not delay this Yeah. conversation further. Thanks a lot. Thanks a lot for having me here. And I'm glad that, I'm here and I can talk to you people and, understand, I can convey whatever I have and understand from people's perspective as well. Yeah. तो प्रियंका, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं मतलब एक बहुत ही छोटे उसमें आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि कई बार शायद हमें लगता है, और इस समय फैट चला हुआ है, क्या ये इस तरह की सिचुएशन है, क्या ये एक्चुअल सिचुएशन है जिसको हमें डील करना और एक प्रोफेशनल मैनर में डील करना जरूरी है? See, stress एक ऐसी चीज है, it's not that, I think I'm audible, right? यस, यस, वेरी वेल. या सो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हमेशा से ही रही है लोगों के पास, बट हैविंग सेड दैट, आज के डेट में अगर हम देखें द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी हैव, जैसे हम भाग रहे हैं दिन रात चीजों के पीछे, यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज, ना हमारे खाने का ठिकाना है ना हमारे सोने का ठिकाना है, एंड वी आर रनिंग इन द रैट रेस. डेफिनेटली जब आप स्ट्रेस्ड होते हो इट इम्पैक्ट्स यू, और अगर आपने इसका टेक केयर नहीं किया so you can understand how the life would be, because it is impacting you internally. बाहर से हमें ठीक लग रही होती हैं चीजें, but internally ही सब कुछ है, और internally अगर आप align नहीं हो तो सब चीजें ऊपर नीचे हो जाती है. So that's definitely very important to manage the stress level, and we need to have a look at that. Got it. So, very simply, if I may ask, मुझसे अगर कोई पूछता है कि तुम्हें स्ट्रेस होता है, तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ मैं स्ट्रेस देती हूँ, मैं स्ट्रेस लेती नहीं हूँ. बट कोई ऐसे कॉमन साइंस या सिम्टम्स ऐसे हैं जो जिनका हमें ध्यान में रखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि, और हमने अक्सर देखा है,
बहुत हैप्पी लोग लाइफ में दे हैव कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, which was never, which we couldn't even realize, yeah, like it comes as a shock to everybody, चाहे वो रॉबी हम्म विलियम्स जैसे एक्टर रहे हो या सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग रहे हो, तो हम्म are there any signs or symptoms which we should always think about? Definitely yes. See, when we are stressed out, stress होना is not an issue. Stress लेना चाहिए, हमें pressure लेना चाहिए, but it's to a level. अगर एक Hemlata, can you please ask Miss Rinki to be on mute, please? Yeah, thank you. Yes. सो लेकिन अगर हमने एक लेवल से ज्यादा लिया तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगी। और साइंस की अगर आप बात करें, क्या साइन हमें दिखता है जिससे पता लगे? See, if it is for 2-3 days, some tension, some stress is okay. But if it is more than 15 days that you are not able to cope up with that stress, you should go to the doctor and see, right? आप definitely हमें मान लो lower backache होना is again one of the major sign of your stress, right? कई बार हमें देखते हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी चीजें ऐसे दिक्कत नहीं हो रही होती है, लेकिन हमारे लोअर बैक में प्रॉब्लम हो रहा होता है, सो वो स्ट्रेस के साइन हो सकते हैं, Okay. राइट? आपको हेडेक हो सकता है because Okay. of stress, right? So sometimes migraine also happens because of stress, Okay. right? अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो that can also because of stress, right? तो इस टाइप की अगर चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि मैं टेंशन ले रही हूँ, हम लाख बोल दें कि यार मैं टेंशन देती हूँ, दूसरों को लेती नहीं हूँ, बट इंटरनली हमें पता होता है कि हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है, राइट? सो दैट डेफिनेटली यू शुड एड्रेस टू दैट प्रॉब्लम, और उसको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ it can be with the help of people around us, it can be with the help of doctor, it can be it can be with the help of people, let's say who are in this holistic wellness therapy, like yoga करवाने वाले हों या फिर meditation करवाने वाले हों, so you can get help from any of these people. Okay. Great. So, tell me if we can, before going to the doctor, are there any practical strategies which we can use to manage our stress levels effectively? क्योंकि एक mindset है कि डॉक्टर के पास क्यों जाना है, और बहुत सारे लोग शायद इसी वजह से अपने स्ट्रेस को एड्रेस नहीं करते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो are there any ways where people can manage their stress level on their own? Right. So I'll tell you, I always talk about, go back to basics. And वो जो basics है ना, हमारी जो दिनचर्या, आप देखोगे हमारे ग्रैंडफादर और मम्मी पापा भी, अगर उनका आप लाइफस्टाइल देखो तो हमारे लाइफस्टाइल से काफी डिफरेंट थी, राइट? आज लोग 8 बजे से पहले सो के नहीं उठते हैं, तब तो 8 बजे तक पूरा काम घर का हो चुका होता था, राइट? व्हेन वी वर किड्स 8 o'clock एवरीथिंग वाज डन, राइट? सो इट इज लाइक आपको लाइफस्टाइल अपना बैलेंस करना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेसिक्स पे देखो, कैसे हमने है ना मॉर्निंग उठना होता था, आपको रेडी होना था, फिर आप है ना ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, फिर आप काम के लिए जाते थे। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप यू आर गोइंग टू जिम, यू आर गोइंग टू वॉक, अगर आप इन चीजों को कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, बिकॉज दीज आर ऑल हार्मोनल। और जब आप एक एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके हार्मोन की सिक्रेशन है आपके बॉडी में, और जब हार्मोनली आप बैलेंस्ड हो तो आपको सही और गलत का डिसीजन लेना इजी हो जाता है, राइट? क्योंकि हार्मोन कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, राइट? अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया तो आप इतना पैनिकिंग कंडीशन में होते हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपको और भी प्रॉब्लम्स हो गई, सो योर बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग, और बॉडी हमें साइन देती है, डेफिनेटली बॉडी हमें बताती है कि आई एम नॉट इन द प्रॉपर स्टेट एंड टेक केयर ऑफ मी। सो जब बॉडी आपको ये चीज बता रही हो तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। तो इन अ वे आप कहना चाह रहे हो कि जैसे अगर स्ट्रेस हो रहा है और अगर हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जिससे वो स्ट्रेस कम हो सकता है, तो नेचुरली हमें हेल्प करेगा उस स्ट्रेस को डील करने की, रादर देन स्ट्रगलिंग विद इट एंड इंक्रीजिंग आवर स्ट्रेस लेवल। डेफिनेटली। सी फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आज के डेट में व्हाट वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम, एवरेज अगर आप देखोगे लोगों का 6 घंटे आप फोन के ऊपर स्पेंड करते हो, राइट? अगर उस 6 घंटे में से हमने 1 घंटा भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दे के बैठ के बात कर लिया ना,
तो वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन हो जाएगा, राइट, डोपामाइन सिक्रीशन हो जाएगा वहां करेक्ट पे। करेक्ट। एंड देन डेफिनेटली हम है ना एक, अब आप देखो, आई 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 वाज कोटिंग टू समबडी एंड दिस वाज लाइक, द गर्ल सेड दैट आई वाज वेरी इन पैनिकिंग कंडीशन एंड आई वाज लाइक व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एंड 2 o'clock शी कॉल्ड अप हर फ्रेंड, और 5 मिनट तो ये रोई उसके पास, एंड देन व्हेन हर फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, एंड आफ्टर दैट 25 minutes इट वाज ऑल हंसने वाला माहौल। So you understand, you need to have a friend whom you can call anytime, आप उनसे बात करोगे, so please do talk। वो चीजों को अगर आप करते हो तो आप आराम से आप बैलेंस कर लोगे अपने लाइफ को। द आर्ट ऑफ गिविंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब आप है ना किसी को दिल से देते हो ना, तो आपके अंदर जो खुशी होती है ना, वो भी आपको मैनेज करती है, वो भी आपको बैलेंस आउट करती है। That is really true. And do you think that in all this, nutrition also plays an important role? 100%. See, what happens is, for example, people who are having, let's say, vitamin D deficiency, right? People who are having vitamin B deficiency, magnesium deficiency, ये सब चीजें अगर रहेंगी ना, तो आपकी बॉडी ठीक से परफॉर्म नहीं करेगी और आप डिप्रेशन में जाते रहोगे। When you are going in depression, let's say अगर मैग्नीशियम बॉडी में नहीं है, तो पोटेशियम जो आप ले रहे हो वो काम नहीं करता है, एंड when it is not working, वहां पे आप हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सो व्हेन यू आर टेकिंग प्रॉपर फूड, अपने बैलेंस्ड लाइक वेजिटेरियन या फिर नॉन वेज, वट एवर यू आर टेकिंग, इफ यू आर टेकिंग दोज फूड्स बैलेंस्ड अमाउंट में अगर आप ले रहे हो सब कुछ को, तो डेफिनेटली इट विल हैव इम्पैक्ट, बट बिकॉज इट इज ओनली रेगुलेटिंग योर इंटरनल थिंग्स, राइट? सो फूड इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। हम बोलते हैं ना, जैसा जैसा खाना वैसा मन, राइट? Right. वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Of course. And I think कई बारी वो जो आजकल तो खास तौर पे बहुत हो रहा है कि हम स्ट्रेस में हैं और फिर हमारे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो गए हैं और फिर उस वजह से हमारा वेट गेन हो गया है और उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा विशियस साइकिल क्रिएट हो गया है जिसको इंसान आराम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वो समवेयर इसीलिए है क्योंकि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट उनका ठीक नहीं चल रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो उन चीजों को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So do you even think कि you said exercise is very important, कोई योगा टेक्निक या कोई ब्रीदिंग टेक्निक ऐसी आपके जो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुकी है टू so that we have so many young I wouldn't say workers but this young blood over here जो शायद हमने तो फिर भी योगिक क्रियाज देखी हैं तो हमें पता है बट क्या उन लोगों को आप कोई ऐसा टेक्निक बता सकते हो जो वो ऑफिस में बैठे हुए या कहीं कभी उनको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, रिलीज है, क्लाइंट नहीं क्लोज हो रहा है, दे आर डीलिंग विद ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। राइट। सो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम मोस्टली पीपल डू सॉलो ब्रीदिंग, हम एक्चुअल ब्रीदिंग ही नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग का जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो ना, तो डीप ब्रीदिंग का मतलब है एयर जो आप ले रहे हो। नॉर्मली व्हेन यू डीप ब्रीथ, आपका एयर, हम बोलते हैं लंग्स तक जाना चाहिए, नहीं, वो हमारे टमी तक जाना चाहिए। जब तक वो टमी तक नहीं गया, आपके पूरे सेल्स में एब्जॉर्प्शन नहीं हुई ऑक्सीजन की, राइट? और जब वो पूरे इंटरनल आपने डीप ब्रीदिंग करी, तो आपको इमिडिएटली इम्पैक्ट दिखेगा। 1 घंटे में, लाइक मॉर्निंग व्हेन यू आर गेटिंग अप, माय पर्सनल दिस थिंग इज, मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, राइट? सो माय रूटीन इज लाइक दैट, भ्रामरी करती हूँ। आफ्टर माय वर्कआउट मैं फिर ये प्राणायाम करती हूँ। सो प्राणायाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप दिन में भी, हम बोलते हैं ना कि 1 घंटे का आप अलार्म लगा लो, इफ इट इज वंस यू आर मेकिंग इट अ प्रैक्टिस, वो अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, आप 1 घंटे में छोड़ दो। आप दिन में अगर 1-2 बार भी कर लेते हो, इट मेक्स इम्पैक्ट ऑन यू। सो बट क्या ये जरूरी है कि हमें 1 घंटा करना है? हम क्या नो नो नो, ओके, मैं बोल रही हूँ 1 घंटे में। लेट्स से फॉर अच्छा 1 घंटे, एग्जाम्पल, ओके, हाँ, तो हर एक सो घंटे में डीप ब्रीदिंग करिए सो दैट योर स्ट्रेस लेवल कम्स डाउन। एग्जैक्टली। ओके, सो स्ट्रेस लेवल इज व्हाट, सी, अगर आप पैनिक हो रहे हो एंड इफ यू आर एबल, जो चीजें नहीं हो रही है वो नहीं हो रही, राइट? करेक्ट, पैनिक होने से हो तो नहीं जाएंगी वो, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली, लेकिन आप उसको बैलेंस कैसे करते हो, आप उसको मैनेज कैसे करोगे, वो इंटरनली है। जब आप कंप्लीटली रिलैक्स रहोगे ना, तो आप चिल आउट होगे, फिर आप वेज फाइंड आउट करोगे कि यार इस काम को करना कैसे है। इन करेक्ट स्पाइट ऑफ करेक्ट, क्रिएटिंग पैनिक, यू विल फाइंड आउट द वेज हम कैसे इसको कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली, और वो तभी होगा जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन लेवल ही हमारा उतना नहीं है, तो हमारी सोचने की शक्ति खत्म है।
और जब सोचने की शक्ति खत्म है तो आप सोचो वेज मीन्स कैसे फाइंड आउट करोगे। आप देखो दो लोग होंगे साथ में काम कर रहे होंगे, एक बंदा सोल्यूशन लेके आएगा, दूसरा बंदा प्रॉब्लम लेके आएगा। करेक्ट करेक्ट। Right, so depends upon their internal thing, how they are aligned. So I think all you people, you need to make a note. हर एक घंटे में just do deep breathing. You don't have to do pranayam. You don't have to do Agnisar or I know Kapal Bharti and all those complicated things. But simply deep breathing and जैसे प्रियंका ने बोला कि deep breathing का मतलब है कि वो आपके टमी तक, आपके स्टमक तक आपको इनहेल करना है, सिर्फ लंग्स तक इनहेल नहीं करना है. Then only you will be able to calm yourself down and find a solution to your problem and reduce your stress levels. You can immediately see rather, अगर आप अभी भी खुद को करके देखो तो आपको पता लगेगा कि मैं लंग तक ले रही हूँ एंटायर एयर को तो इम्पैक्ट क्या है, और मैं टमी तक लेके जा रही हूँ अपने ब्रीदिंग को तो क्या इम्पैक्ट है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सी इट इज सेड दैट आप सांस को ना धीरे कंट्रोल योर ब्रीथ, राइट? आपको धीरे धीरे स्लो आपको ब्रीदिंग करनी चाहिए. बोलते हैं ना डॉग्स ब्रीथ वेरी फास्ट, राइट? देयर लाइफ स्पैन इज सो स्लो, राइट. और आप है ना सेंट्स को देखो, दे ब्रीथ वेरी स्लो, उनका लाइफ स्पैन देखो कितना ज्यादा है. करेक्ट करेक्ट. राइट, सो it impacts. Very good. I mean, that's something so easy to do and easy to implement in our day-to-day life. So I think we should all make it a point कि हर एक घंटे में अपने आप को, एंड इवन आई थिंक, मुझे तो लगता है कभी कभी जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ और रेड लाइट आ जाती है ना, तो वो मुझे काम डाउन करने के लिए आती है, सो दैट मेरे रोड रेज दिल्ली की सड़कों पे थोड़ा कम हो जाए. बट नाउ आई विल स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग ऑल्सो सो दैट आई स्टार्ट ड्राइविंग ऑल्सो. राइट इंडीड. ओके, मूविंग फर्दर, एक दो चीजें मैं आपसे, अदरवाइज आपने कोर एंड प्योर बनाया एंड यू आर बीन एसोसिएटेड विद आयुर्वेदा आल्सो, सो डू यू थिंक, मतलब कहीं ना कहीं आपने शायद ये आइडेंटिफाई करा होगा कि एसेंशियल ऑयल्स आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग स्ट्रेस एंड होलिस्टिक वेलबीइंग ऑफ सम ऑफ पीपल. See, what happens is, mine is, I am completely a traditional person. I'll say I have strong belief in Vedas and our culture. So what happens is, मैं बहुत कॉमन सी बात बोलती हूँ और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आपके घर में आपको मम्मी पूजा करने बोलती हैं या दिया जला दो या फिर लोबान की धुनी कर दो, फूल चढ़ा दो, तो हमें गुस्सा आता है ना कि यार क्या तुम करते हो यार, मुझे मत बोलो ये चीज है, राइट? So these things, when you see, it is like, you know, essential oil is something, मैं essential oils पे काम करती हूँ, and essential oil is something, the smell what you get from any plant is because of that essential oil component, right? और वो diffusive in nature होता है, तो वो plant के किसी भी part में रहेगा. जैसे flower अगर आप गुलाब का चढ़ा रहे हो तो गुलाब में essential oil component है, और उसकी खुशबू जैसे ही आप लेते हो आपको एक relax and calm feel होता है. Because उसके जो component हैं through your olfactory entered your blood vessel and worked on your hormone, right? Okay. हम बोलते हैं कि आप है ना लोबान की धुनी करो, सुबह और शाम करो, बोलते हैं ना. तो लोबान की धुनी करो, राइट? तो जब ये बोलते हैं नेगेटिविटी चली जाएगी. नेगेटिविटी बाहर कुछ भी नहीं है. इट इज लाइक हाउ यू आर इंटरनली बैलेंस्ड, राइट? वो आपके अंदर जाती है, आपके हाइपोथैलेमस पे वर्क करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, एंड देन आप इम्पैक्ट उसका उठाते हो. आप बाहर वाली चीजों को लगता है आपको नहीं यार इट्स इजी, हम मैनेज कर लेंगे, राइट? right. So it is like that, and it is like food. मॉर्निंग और इवनिंग क्यों बोला जाता है इन चीजों को? जब आप खाना भी तो 3 बार खाते हो ना, क्योंकि आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है. वैसे ही ये चीजें आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है. आपको बोला जाता है प्लांट्स लगाओ, फ्लावर्स लगाओ घर में, या ग्रीनरी में घूमने जाओ, बिकॉज दीज थिंग्स आर गिविंग यू दोज फ्रेग्रेंसेस जो कि कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है नेचुरल, उनमें गॉड ने ऐसा दिया हुआ है जो आप इनहेल करते हो तो आपके अंदर जाके आपको अलाइन करती है, बैलेंस करती है. एंड पर्सनली आई हैव सीन द बेनिफिट ऑफ दोज थिंग्स, सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट. And as I told you, I'm very natural, nature, like a loving person. So that's how I got into this one. So good to hear that. And actually, I think we can relate to these things. शायद essential oils जब आप बोलते हो तो वो थोड़ा scientific oil और उस तरह की, but जैसे ही आपने गुलाब का फूल बोला तो हम सोच रहे हैं गुलाब का फूल, हम सोच रहे हैं जैस्मिन, हम इवन तो वो जो हम मंदिर में घुसते हैं तो जो हमें खुशबू आती है उसी से हम काम डाउन हो जाते हैं. मतलब अंदर आप अपने एक कई बारी तो पूरा पहाड़ लेके मंदिर में घुस रहे होते हो कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे डील करूंगा, और वो खुशबू सूंघते ही आपका यू आर काम डाउन, एबल टू आइडेंटिफाई
राइट। तो इज देयर एनी पर्टिकुलर वे यू सजेस्ट कि एसेंशियल ऑयल्स को इसी तरह से यूज करना चाहिए? सो आई सजेस्ट पर्सनली, आप इसको बहुत लोग डिफ्यूजर में भी डालते हैं, सो इट कैन बी यूज्ड इन डिफ्यूजर, बट पर्सनली आई लव यूजिंग इट एज अ परफ्यूम। आप जब परफ्यूम की जगह एसेंशियल ऑयल को लगाओ, आप उसे 2 ड्रॉप्स अपने पाम पे डालो, रब करके इनहेल करो 2-3 बार कप बना के, वो ज्यादा इम्पैक्ट होगा। एंड एज दीज आर नैनो पार्टिकल्स, सो आपके हाथ से भी आपके अंदर चले जाएंगे और इनहेलेशन से भी जाएंगे, सो पावरफुल इम्पैक्ट आता है। जब आप डिफ्यूजर में डालते हो तो वो चारों तरफ आपके रूम में भी डिफ्यूज हो रहा होता है, बट अगर आप पाम पे डालते हो तो आपको इमिडिएटली इम्पैक्ट आता है। सो बट जैसे अब हम ऑफिस वगैरह एनवायरनमेंट में हैं तो एवरीबडी हैज देयर ओन लाइक्स डिसलाइक्स एंड बट टू इम्प्रूव द ऑफिस हैप्पीनेस फैक्टर एंड रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल, अगर हम डिफ्यूजर में मॉर्निंग इवनिंग डालकर उसको यूज करें या ऑयल पॉट में यूज करें, सो इज इट अ गुड आइडिया? 100% गुड आइडिया, 100% गुड आइडिया। सो इट विल इम्पैक्ट द एंटायर पीपल हु आर सिटिंग देयर, और उन ओके, सबको है ना, जाने अनजाने उनको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, एंड थ्रू इनहेलेशन दे आर टेकिंग इट एंड इट इज हेल्पिंग देम आउट। राइट राइट। राइट। दैट्स सो गुड टू नो कि जाने अनजाने बिना उनकी एफर्ट करे हमें पता, हम वी विल बी एबल टू इम्पैक्ट देम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो एंड हमने स्ट्रेस की बात करी और हमने उनके सिम्टम्स की बात करी और हमने ये भी बोला कि अगर वो स्ट्रेस 15 दिन से ज्यादा अगर हमें हो रहा है तो हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत लेनी चाहिए। बिल्कुल। Are there any specific lifestyle changes that we can make to reduce chronic stress in the long term? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप जिनका स्ट्रेस लेना बंद नहीं करते हो तो वो chronic stress का फॉर्म ले लेते हैं। तो बट क्या ऐसे कुछ चीजें हैं, ऐसी हैबिट्स हैं जो लाइफस्टाइल में हम अपने चेंज करें और वी आर एबल टू डील विद देम बेटर? राइट। सी, क्रॉनिक, डेफिनेटली व्हेन इट इज क्रॉनिक तो आपको डॉक्टर को तो मिलना ही चाहिए, बिल्कुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू आर चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, वो आपको इम्पैक्ट करेगा। लाइफस्टाइल इन द सेंस, सबसे पहले तो देखो, हमें जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम नहीं समझते हैं, राइट। आप सनलाइट के, लाइक सूर्य उदय, सनराइज के पहले उठो और सनराइज के बाद उठो, दोनों में आपको खुद का फील होगा कि है ना, आपका मूड एक अलग रहता है जब आप सनराइज के पहले उठते हो। सो दैट इज वन थिंग, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ना, आई ऑलवेज से यार 5 मिनट कम करो। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो तो 6:55 पे उठो। राइट 4 दिन 6:55 पे उठो, फिर आप 4 दिन 6:50 पे उठो, ऐसे ऐसे करके वो आपकी आदत में इंक्लूड हो जाएगा, करेक्ट राइट। करेक्ट। सो दैट्स वन थिंग। एंड आई ऐड ओवर हियर, मेंटली आपको लगता है आज आपके पास कितना टाइम है तो आप जल्दी एग्जैक्टली। जल्दी सब काम कंप्लीट कर लेते हो अपना। राइट। एंड यू नो व्हाट माय प्रॉब्लम इज, कि जैसे मैं वर्कआउट लाइट आने के बाद नहीं कर सकती हूँ, सनराइज के बाद मुझसे से वर्कआउट नहीं होता है, सो आई फिनिश माय वर्कआउट बाय 6 o'clock। ओके मेरा वर्कआउट 6 o'clock के पहले खत्म होता है। सो दिस इज हाउ माई आई एम अट्यून्ड। तो आपकी एक आदत हो जाती है, आपका एक हैबिट हो जाता है, एंड देन यू फील लाइक यार कितना टाइम है। आप 8 बजे सो के ही उठोगे तो फिर तो चीजें वैसे ही वैसे डिले होती जाएंगी, एंड राइट। दिस इज फॉर अ यंगर जनरेशन टू ईयर, ओके, कि जल्दी उठ जो यस, सेइंग है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। डेफिनेटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका एक प्रॉपर सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी नींद पूरी मत करो, जो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, आप उतनी उतनी नींद डेफिनेटली लो। जब तक आप नींद नहीं लोगे तो आप जल्दी उठ के, या लेट से भी उठोगे ना, आप 10 घंटे भी सो जाओगे तो आपको लगेगा, अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया है, अगर हम डीप स्लीप में नहीं है, तो 10 घंटे भी सो, आपको लगेगा कि यार मैं तो सोया ही नहीं है, मैं तो सोई ही नहीं, राइट। राइट राइट। सो और ऐसा दैट हैज अक्सर टू बी होता है प्रॉपर। राइट, स्ट्रेस की वजह से लोग लंबे समय तक सोते हैं मगर डीप स्लीप में नहीं होते हैं। डीप स्लीप में नहीं होता है, सो वो डीप स्लीप होना जरूरी है। आप उसके लिए है ना, मेडिटेशन करके भी सो सकते हो, या फिर भी सजेस्ट एसेंशियल ऑयल यूज करके सो, या फिर अपने रूम में है ना कुछ आप जैसे जैस्मिन फ्लावर होता है, बोलते हैं जैस्मिन फ्लावर भी आप अपने रूम में रख के सो सकते हो, बिकॉज उसमें भी एसेंशियल ऑयल कंपोनेंट है, वो हाँ, डिफ्यूज हो रहा होता है, एंड देन इट हेल्प्स यू आउट। तो आप उस तरह की चीजें कर सकते हो। प्लस लैवेंडर आई अपने, बिलीव लोग कहते हैं कि यस, लैवेंडर राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके फूड हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, और अगर आप है ना नॉर्मल फूड खा रहे हो, जो आप नेचुरल फूड खा रहे हो, वो भी आपको स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो आपकी एंजाइटी, अगर मान लो फॉर फॉर एग्जाम्पल, आप है ना कुछ व्हाट यू से नूडल्स और कुछ वैसी चीजें खा रहे हो, और आप कुछ
नेचुरल घर का खा रहे हो, या फिर नॉर्मल रोटी सब्जी की बात मैं करूं, या फिर राइस और वट एवर स्टेपल फूड, आप उसको खाओगे, उससे जो आपके बॉडी को अलाइनमेंट मिलेगी, और जो आप जंक नहीं जंक फूड मिलती। खा रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो ट्रांस फैट और ये वो जाके आपके अंदर रहते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू, राइट। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। राइट। अपार्ट फ्रॉम योर एसेंशियल ऑयल्स, आई थिंक आपके कुछ ऑयल्स इस तरह के भी हैं जो एक्यूट पेन या कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को भी हम एसेंशियल ऑयल्स के साथ रिजॉल्व कर पाते हैं। इज दैट, एम आई सेइंग इट राइट? राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि अपना, आई एम सॉरी, कैन यू, या, या सो जैसे अर्थराइटिक पेन ऑयल है हमारे पास, फैट रिडक्शन ऑयल है हमारे पास, डिटॉक्स ऑयल है, तो ये एसेंशियल ऑयल जैसा मैंने बोला कि आपके अंदर जाते हैं और उस पे इम्पैक्ट करते हैं, एंड दीज आर ऑल हार्मोनल इश्यूज। बिफोर डूइंग माय स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स आई वाज नॉट नोइंग कि अर्थराइटिक पेन जो है वो स्ट्रेस के कारण होता है। आई हैड नो आइडिया ऑन दैट, ट्रस्ट इन मी। एंड अर्थराइटिस हैपेंस और इट कैन बी एग्रेवेटेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ओके, सो राइट। आप, दैट इज वेरी गुड टू नो। मतलब हम हमेशा अर्थराइटिस को एक एलोपैथिक मेडिसिनल बिल्कुल। ट्रीटमेंट के हिसाब से ही हमेशा देखते थे, और इसको हमने कभी स्ट्रेस से रिलेट भी नहीं करा था। तो राइट। अगर वही जो लोग कहते हैं जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एटसेट्रा, तो दे शुड एक्चुअली रिड्यूस द, ट्राई टू मैनेज द स्ट्रेस विद हेल्प ऑफ Exactly. एसेंशियल एंड देन Right. वर्क पेन किलर्स। Right. And I won't take much of your time now, Priyanka. You've Hmm. already given so much time to us. One last question, one Hmm. advice for Hmm. all the individuals who've joined us today, that, how, what basically advise on in these challenging times, how can they manage their own and stress and identify when do they need professional help? Like, कई बारी हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, बट अगर हमें ये बात पता चल जाए तो हमारे लिए easy हो जाए। Hmm. Right. So, see, I will tell you one thing. मैं पर्सनली जो करती हूँ, मैं पहले करती हूँ खुद, तभी दूसरे को मैं बता सकती हूँ कि यार ये चीज आप करो, सो दैट इज व्हाट। जैसे आई ऑलवेज से, परफ्यूम हर कोई लगाता है, राइट। आप डीओ लगाते हो, जब आप सिंथेटिक चीजें यूज करते हो, उसका आपके, Just 1 second, Miss Priya, if you can go on mute. Thank you. Yes, sorry, Priyanka. no, it's okay. So, I personally would suggest people कि आप अपने फूड को थोड़ा चेंज करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं परफ्यूम की बात करी हूँ, आप है ना परफ्यूम लगा रहे होते हो, राइट। सो इन प्लेस ऑफ परफ्यूम यू कैन यूज एसेंशियल ऑयल, क्योंकि उसके स्मेल ना सिर्फ आपको खुशबू ही देंगे, लाइक फॉर विच यू आर यूजिंग परफ्यूम, बट ये आपके मेंटल लेवल पे भी काम करेंगे, ये आपको रिलैक्स और काम भी रखेंगे। सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप। अब मैं सीधा आपको बोल दूंगा आप 4 बजे सुबह उठो, वो बहुत मुश्किल काम है। हाँ. Take a small step, baby steps, and then start doing it, and definitely it is going to impact a lot on you. And that means in all of this, हमें ये सब जो सबसे मेन चीज समझ में आई है वो है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ केयर की। 100%, yes. I always say, अगर आप हो तभी आपके अराउंड चीजें रहेंगी, अगर आप ही नहीं हो तो फिर अराउंड चीजों को तो भूल ही जाओ, राइट। Right. So first is you understand it's not selfishness. It is about taking care of others also. You need to take care of yourself first, and then only you'll be able to give, you can be caregiver to others. Right. So great. I mean, I think I am taking a lot of pointers today with me. Deep breathing, use essential oils, small changes, and back to the basics. I hope Yes. this session has helped all the people who've joined in today and the people who we will be sharing the videos with. Priyanka, it was great talking to you, and Same here. I can really feel the calmness coming through the screens to us. I'm sure it is because of all the core and pure essential oils. Thanks a lot. Thanks a lot for having me here, and would love to hear if anyone has any question, they can come to you or they can write to me, and I would love to take up that. Sure. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye.